Just wait 2 minutes. अभी हम लोग जो डिस्कस किए बेसिकली लिंक लिस्ट. तो लिंक लिस्ट व्हेन वी डिस्कस द फीचर, so first is what linked list is, which types of list. अगर कैटेगराइजेशन आपको बताया गया होगा डेटा स्ट्रक्चर में तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. हाँ, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. यस. तो लिंक लिस्ट इज अ data structure, linear data structure which is used to maintain the linear connection of data elements. ठीक है ना. तो it is a linear data structure used to maintain linear collection of data element. ठीक है ना. linear collection of data element जिसको आप बोल सकते हैं called nodes. ठीक है ना. तो number of nodes are there. तो number of nodes को हम लोग यूज करते हैं. और ये लीनियर ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है, एनीवन कोई बताएंगे हाउ द लीनियर ऑर्डर इज मेंटेन? यस सर. हाँ बताइए. So as we know that in linked list every node contains the address next pointer field of next pointer field which contains the address of next node, sir. So by this linearity is maintained. हाँ, इसका मतलब है कि you are using pointer. The linear order is given by pointers. So second terminology we have, that is nodes. Here nodes, and second one is the pointers. यानी कि linear order जो है वो आपका pointer के थ्रू notify होता है. And दूसरा linear collection means sequential connection. Yes. हाँ, linear means sequential. You can write sequential also. It is a linear data structure used to maintain linear collection or sequential collection of data element. ठीक है ना. Means one by one, sir. One by one after another. एक के बाद दूसरा. तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट की नोड्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ. दूसरा पॉइंट की पॉइंटर्स का यूज होता है लीनियर ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वन आफ्टर अनदर नोड को एडअप करने के लिए. और तीसरा जो मेन पॉइंट है कि अब जो नोड है उस नोड का कितना सेक्शन होगा. तो द नोड कंटेन्स 2 और मोर देन 2 सेक्शंस. ठीक है ना. तो ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स. तो ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स. 2 और मोर पार्ट्स इसलिए क्योंकि 2 पार्ट्स तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए. whenever we are going to implement linked list implementation of queue or data stack, then we are using the node consisting 2 parts. एक नोड यूज कर रहे थे जिसमें 2 पार्ट था. एक इन्फो यानी वैल्यू होल्ड करता था, दूसरा आपका एड्रेस होल्ड करता था, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. तो we just use info and next pointer field. Next pointer field contains the address of the next node. If there is no node, then that should be assigned by null. अगर कोई नोड नहीं है तो null से असाइन हो जाता था. अब यहाँ 2 और मोर लिखने का मतलब है कि हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट डिस्कस करेंगे. सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट, तो हेडर लिंक लिस्ट. तो ये अलग अलग तरह का जो लिंक लिस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. उसमें सिंगल लिंक लिस्ट में यानी वन वे लिस्ट में तो 2 नोड का 2 पार्ट होगा, लेकिन आपका डबल लिंक लिस्ट में नोड में 3 पार्ट होगा. यानी एक प्रीवियस पॉइंटर फील्ड भी अटैच हो जाएगा इन्फो और नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड के साथ. तो इसलिए ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू 2 or more parts. So what we have to discuss under linked list? So basically we have
various types of linked list we have to discuss. Then after we discuss the particular nodes according to the type of single linked list. So various types of linked list we have. Various types of linked list we have to discuss. That is, first one is the single linked list. सिंगल लिंक लिस्ट, और इसको कभी कभी सिंगली भी कहा जाता है, सिंगल लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट. सिंगली लिंक लिस्ट, समटाइम इट इज आल्सो नोन एज वन वे लिस्ट. वन वे लिस्ट, ठीक है ना. तो किसी भी तरह से इसको नोटिफाई कर सकते हैं. सेकेंड वन इज द डबली, यू कैन से डबली लिंक लिस्ट, doubly linked list, or you can say two-way list, doubly linked list or two-way list. Third, we have to discuss about the circular linked list. Fourth one, we discuss about the header linked list. In your syllabus, first three parties discuss single linked list, doubly linked list, and circular linked list. But we discuss header linked list also. So these are the four types of linked list we have to discuss. So one by one we discuss. First one, singly linked list or one-way list. अब सिंगल लिंक लिस्ट या सिंगली लिंक लिस्ट या वन वे लिस्ट में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो योर डिफिनीशन इज सेम, जैसा आपका लिंक लिस्ट का डिफिनीशन वही रहेगा, केवल इसके डिफिनीशन में नोड को हम एलेबरेट कर देंगे. यानी कि अर्लियर वी डिस्कस दैट कि ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट. नाउ वी डिस्कस दैट कि ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एंड व्हाट आर दैट टू पार्ट्स? वी जस्ट डिस्कस द फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन of the element, and the second part contains the next pointer field which contains the address of the next node. And if there is no node, then that should be assigned by null pointer. And we also discussed what are the additional pointer variable we have to take whenever we have to handle the single linked list. In case of stack and queue, stack और queue में हम लोग क्या कर रहे थे कि टॉप और फ्रंट रियर पॉइंटर ले लेते थे. यहाँ पर हम जो है कॉन्सेप्ट हम लोग का है, या तो आप हेड या स्टार्ट पॉइंटर यूज कर सकते हैं, head pointer variable or start pointer variable in case of single or one way list. So first of all, what is single linked list? So it is a, just mention that it is a linear linked list. It is a linear linked list. ठीक है ना. linear linked list है जिसको आप वन वे लिस्ट भी कर सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी हम लोग मेंशन कर दिए हैं. तो इट इज अ लीनियर लिंक लिस्ट एंड यहाँ पर क्या है, ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ईच नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. नाउ ईच नोड में टू पार्ट्स में क्या है, फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट एंड सेकेंड पार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ next node in the list. तो इसका मतलब है कि आपका जो नोड होगा उस नोड में एक इंफॉर्मेशन पार्ट होगा, एक आपका एड्रेस पार्ट होगा जो ऑलरेडी हम लोग यूज किए हुए हैं. इसके अलावा इन एडिशन अब इस दो पार्ट के अलावा इन एडिशन वन अनदर, वहां हम लोग स्टैक के केस में टॉप लेते थे, क्यू के केस में फ्रंट और रियर लेते थे. तो इन एडिशन अनदर pointer variable, let's say head.
You can also use start, say head. Head pointer variable, head is used. Why it is used? Used that contains The address of रखेगा, हाँ, that contains first node. हाँ, that contains the address of the first element or first node. Use that contains the address of the first element of the list. ठीक है ना? तो फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस के लिए हेड, इसलिए हेड लिया गया। जैसे टॉप हम लोग क्यों लेते थे? टॉप इसलिए लेते थे कि जब स्टैक को खाली रखना होता था तो टॉप में नल असाइन कर देते थे। फ्रंट और ईयर क्यों लिए? फ्रंट और ईयर इसलिए लिए क्योंकि जब क्यू को हमको एम्प्टी करना होता था तो क्यू का फ्रंट और ईयर दोनों को नल असाइन कर देते थे इनिशियली। तो यहाँ पर भी हेड पॉइंटर का रोल वही है। हेड पॉइंटर या स्टार्ट पॉइंटर, आप कोई भी पॉइंटर अगर लेते हैं एडिशनल, तो दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर assigning null value, or if there is any node then the address of that node is assigned to that particular pointer variable. So another pointer variable head is used that contains the address of the first element of the list. अब एक और चीज यहाँ पर है, ये इस पॉइंट के अलावा, कि आपका जो नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ऑफ द लास्ट नोड होगा, ठीक है ना, वो हमेशा नल होगा। तो द next pointer field of the last node must be assigned by null, ठीक है ना, null value ठीक है। और एक और पॉइंट आपका है कि null value is usually assigned by represented by character x से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो देयर इज ए हेड पॉइंटर वेरिएबल, यानी कि दिस वन इज द हेड, और यू कैन से स्टार्ट भी बोल सकते हैं आप, हेड या स्टार्ट। एंड फ्रॉम दिस देयर इज ए लिंक ऑफ चेन। दैट मीन्स कि ये आपका हेड है जो फर्स्ट नोड का एड्रेस रखा हुआ है, ये लास्ट नोड है, लास्ट नोड का नेक्स्ट हमेशा नल होगा, और यहाँ पर भी कुछ कुछ वैल्यू होगा। सपोज करो कि यहाँ पर 2 है, 5 है, 10 है, तो ये एक्चुअली क्या है, अगर यहाँ बोलें तो दिस इज द इन्फो या इंफॉर्मेशन ऑफ द सेकेंड नोड। And what is this? This one is the Next pointer. Address of the next node after the second node. Sir, why do we need head, sir, here? We need head here to इनिशिएट द पर्टिकुलर लिस्ट को इनिशिएट करने के लिए एक हेड। जैसे आपका ये आपका हेड क्या है, एक तरह से जैसे आप रेलवे आप लेते हैं, रेलगाड़ी में इंजन है, तो इंजन इज जस्ट इनिशिएटर, तो हेड से ही आपका जो है बाकी का नोड जो है अटैच होगा। तो वन बाय वन, तो इनिशियली जब आपका कोई भी डब्बा नहीं रहेगा कंपार्टमेंट, तो हेड आपका वो इनिशियली नल असाइन होगा उसमें। तो ये आपका इनिशिएशन करने के लिए कहीं से तो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए ना, तो हेड इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो फॉर स्टार्टिंग पॉइंट वी जस्ट टेक द हेड पॉइंटर, और यू कैन से स्टार्ट पॉइंटर। आप हेड पॉइंटर ले सकते हैं या स्टार्ट पॉइंटर ले सकते हैं। तो हेड का काम, so, why can't we start from a node, sir? Why not start means कि if you just delete all the node, तो
in future whenever you want to include any data over there, then what is the possibility of inclusion over there? अगर आप सभी डेटा को डिलीट कर देंगे तो पॉसिबिलिटी, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर इनिशिएशन पॉइंट रखेंगे तभी तो आपका फिर से वो इनिशियलाइज हो सकता है नया वैल्यू से। सारा नोड डिलीट होने के बाद तो इनिशियलाइजेशन आपका ओवर हो जाएगा, कहीं से फिर से आपको फिर नया डेटा बनाना पड़ेगा क्रिएट। तो एक हेड या स्टार्टिंग जोड़ने के लिए सर, एक तरह से। हाँ, जोड़ने के लिए, इनिशिएशन करने के लिए, वहां से आगे लिस्ट को बढ़ाने के लिए। तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, अब जैसे दिस इज द वन वे लिस्ट, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो ये नोड है आपका। हम लोग हेड में कुछ रखते भी हैं। किसमें? हाँ, हेड में एड्रेस रखते हैं। हेड में आपका नल असाइन करेंगे इनिशियली, जैसे टॉप में नल असाइन किए थे, फ्रंट और ईयर में नल असाइन किए थे, तो यहाँ हेड में नल असाइन करेंगे। और नल जब आपका होगा तो कोई नोड नहीं होगा, जैसे ही कोई नोड आएगा तो उस नोड का एड्रेस हेड में आ जाएगा। तो वो नोड कौन होगा? फर्स्ट नोड होगा। तो जैसे ही कोई फर्स्ट नोड आपका एलोकेट होगा तो फर्स्ट नोड का एड्रेस हेड पॉइंटर में एलोकेट हो जाएगा। ठीक है ना? ये ऑलरेडी हम लोग स्ट्रक्चर यूज कर चुके हैं। यहाँ पर ये आपका इन्फो पार्ट हो गया, ये आपका हो गया नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। ठीक है ना? तो योर इन्फो फील्ड कंटेन्स वैल्यू और नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड contains address. Of address contains address of the next node. अगर नेक्स्ट नोड होगा तब, अगर आपका पहला एलिमेंट पहला ही नोड होगा तो उसके नेक्स्ट में तो नल ही असाइन होगा। समझ रहे ना? यस सर। सर यहाँ सर 2 यहाँ सर फर्स्ट नोड है ना सर? नहीं, 2 यहाँ पर वैल्यू है, 5 यहाँ पर वैल्यू है। यस सर। 2 5 10 ये सब वैल्यू है। जैसे 12 2 5 10 12 ये वैल्यू है सर। हाँ, ये आपका फर्स्ट नोड है, अभी ये सेकंड नोड है, हाँ ये थर्ड नोड है, ये फोर्थ नोड है, यानी कि अभी 4 नोड इसमें है। यस। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया नोड। नोड का स्ट्रक्चर आप जैसे बनाते थे स्टैक और क्यू में, तो वन वे लिस्ट के लिए आपका नोड का स्ट्रक्चर, नोड कंटेन्स द इन्फो फील्ड एंड द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। तो फर्स्ट वी डिस्कस द स्ट्रक्चर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट नहीं करिए, सिंगल लिंक लिस्ट। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? नाउ वी जस्ट यूज द टाइप डेफ। So we have type def struct node, and now your node contains suppose int info struct node next pointer, and here we take one n. N is your type def, and in place of a struct node we use n. Now we have additional pointer variable value at head, it is assigned by सर यहाँ n क्यों दिया सर? हाँ, n is the type defined for the struct node. struct node के लिए वो type define किया हुआ है। तो in future whenever we have to declare any variable for this structure, इस स्ट्रक्चर के लिए कोई भी पॉइंटर वेरिएबल, टेम्पोररी पॉइंटर या कोई भी तरह का वेरिएबल अगर डिक्लेयर करना होगा तो वी नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रक्ट नोड होगा। तो
for avoiding to write struct node several times, we just type def the struct node by n. Now n is used as a data type for this struct node. Is it clear? Yes. तो struct node आपका हो गया स्ट्रक्चर का नाम और n आपका हो गया वो स्ट्रक्चर वेरिएबल जिसको struct node डेटा टाइप के लिए आप टाइप डिफाइन कर दिए. जैसे int Alias. हाँ alias आप यूज कर देंगे तो you are using alias for struct node in the form of n. So now this is the structure. You have a head pointer. Initially the list is empty. Why? Because the head contains null. So after that, next we have to discuss about operations on single linked. तो ऑपरेशंस, अब यही चीज हम लोग को सब सिंगल डबल जितना भी लिंक लिस्ट सब में वही चीज करना है. तो ऑपरेशंस में वी जस्ट हैव अ लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएशन ऑफ एंड एम्प्टी लिस्ट. सबसे पहले एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करना. तो एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करने का मतलब है कि एम्प्टी लिस्ट में हेड में आपका नल असाइन होगा. तो वैल्यू एट हेड इक्वल टू नल, दैट इज द क्रिएशन ऑफ एम्प्टी लिंक लिस्ट. तो इनिशियली अभी यहाँ पर जैसे हम लोग नल असाइन कर दिए हैं, यही चीज को अगर हम ये हटा दें अभी तो बेसिकली आपका क्रिएशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेमीकोलन में, यानी कि केवल हेड पॉइंटर एक वैल्यू स्ट्रक्ट नोड टाइप हमने डिक्लेयर किया. अभी जो क्रिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, इसी हेड में उस फंक्शन के अंदर नल असाइन कर देंगे. तो व्हेनेवर दैट फंक्शन इज कॉल्ड द हेड इज असाइन्ड बाय नल, दैट मींस द लिस्ट इज क्रिएटेड ओवर देयर. Right now we are declaring head pointer variable only, but we are not assigning null value to that particular head pointer variable. Whenever we are in the process to create an empty list, we just assign null value to the head pointer variable. That is the single line function you have. Creation के लिए single line function होगा जिसमें head को null assign करेंगे. Second, we have to discuss traversal. Traversal operation. Traversal in a list. तो लिस्ट में ट्रावर्सल करने के लिए तो अब यहाँ पर क्या है कि ट्रावर्सल जो है वो दो तरह से हो सकता है. एक तो है कि फॉरवर्ड और दूसरा हो गया बैकवर्ड. So traversal in a linked list we just discussed in two way, that is backward, forward, forward traversal or in order traversal or reverse traversal. यानी बैक टू फ्रंट जाने के लिए. देन थर्ड ट्रावर्सल. अब मेन पार्ट आपका क्या है, वो है आपका इंसर्शन. तो बिफोर इंसर्शन वी आल्सो हैव अ सर्चिंग. तो सर्चिंग भी हम लोग यहाँ कर सकते हैं, बट बिफोर सर्चिंग सॉर्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू परफॉर्म इंसर्शन. क्योंकि इंसर्शन यहाँ पर दो तीन तरह से करते हैं, तो इसलिए हम लोग पहले सर्चिंग और सॉर्टिंग मेंशन कर देते हैं. सर्चिंग इन ए लिस्ट, यानी सर्चिंग ऑपरेशन इन ए लिस्ट. सर्चिंग इन ए लिस्ट. Sir, here reverse traverse means, sir? बता रहे. सॉर्टिंग इन ए लिस्ट. रिवर्स ट्रावर्सल का मतलब हुआ लास्ट से पहले के डेटा नोड तक पहुंचना, यानी लास्ट नोड से स्टार्ट करके फर्स्ट नोड तक पहुंचना. दैट इज द रिवर्स ट्रावर्सल. फॉरवर्ड ट्रावर्सल का मतलब कि हेड से स्टार्ट होकर लास्ट नोड तक जाना. रिवर्स ट्रावर्सल का मतलब क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. ट्रावर्सल दोनों. अब ये रिवर्स ट्रावर्सल, इसमें पहले हमको अप्रोच करना होगा, लास्ट तक जाना होगा. ये चीज डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आसान है. डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होगा, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आप सीधे हेड पॉइंटर से फॉरवर्ड ट्रावर्सल कर सकते हैं और टेल पॉइंटर से बैकवर्ड ट्रावर्सल कर सकते हैं. लेकिन सिंगल लिंक लिस्ट में फॉरवर्ड ट्रावर्सल तो आप डायरेक्ट कर देंगे, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट करते हुए आप लास्ट तक जाएंगे. लेकिन रिवर्स ट्रावर्सल के लिए पहले आपको एक पॉइंटर सेट करना पड़ेगा लास्ट नोड में,
और फिर लास्ट नोड से आपको एक एक करके फर्स्ट नोड तक आना पड़ेगा, दैट इज द रिवर्स ट्रैवर्सल, ठीक है ना। सर्चिंग, कभी भी लिस्ट में कोई भी डेटा को Yes, sir. सर्च करना होगा तो सर्चिंग करना होगा। सॉर्टिंग, दैट मीन्स कि लिस्ट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लाने के लिए वी जस्ट परफॉर्म द सॉर्टिंग इन ए लिस्ट, एंड देन वी थिंक अबाउट द इंसर्शन एंड डिलीशन, बिकॉज दैट insertion and deletion contains list of operation. So first, after that, inserting element in a list. अब inserting element in the list should take place in different manner. अब ये different manner क्या होगा, तो एक तो है कि आप beginning में insert कर सकते हैं, एक है कि end में, यानी list के end में insert करना या beginning में insert करना, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस नोड का एड्रेस नहीं है, इसलिए बिफोर इंसर्शन शुड नॉट टेक प्लेस। तो इंसर्टिंग एलिमेंट इन ए लिस्ट इन सिंगल लिंक लिस्ट आपका तीन तरह से होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, और एट द एंड ऑफ द लिस्ट, और आफ्टर द given element in the list, ठीक है ना। तो तीन तरह से इंसर्शन करेंगे, और डबली लिंक लिस्ट में यही तीन जो है एक और बढ़ जाएगा, 4 आफ्टर के जगह के साथ साथ बिफोर द गिवन एलिमेंट भी हम लोग कर लेंगे, क्योंकि वहां पर प्रीवियस पॉइंटर से प्रीवियस नोड का एड्रेस भी हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट ऑपरेशन वी हैव टू डिस्कस 6.1, that is the deletion, deleting तो डिलीशन भी आपका जो है, डिलीशन भी आप फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द एंड और आफ्टर द गिवन एलिमेंट, डिलीशन भी ये तीनों जगह से आप कर सकते हैं, और एक साथ पूरे लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हैं, डिलीशन ऑफ इंटायर लिस्ट। तो डिलीशन में एक और फंक्शन भी हम लोग जोड़ सकते हैं, डिलीशन ऑफ इंटायर लिस्ट। तो डिलीशन शुड टेक प्लेस, Sir, we have class from 5 o'clock. okay, I just conclude that session from the beginning entire list at a time, and after the list. So these are the various operations we have to discuss. So in next class we just initiate that one by one.